Victorian period is a very crucial period in the history of English literature for certain terms, for certain reason. Number one, the rise of novel. If you see the novel, English novel reached in its zenith form in the Victorian era. Most of the novelists, they emerged in Victorian era. Second, this era is also known for its poem, right? Most of the great poets of English literature also emerged in the same period, like Alfred Tennyson, like Matthew Arnold, Robert Browning, Thomas Hardy, G.M. Hopkins. The best prose also were written in this time. Best prose writer like John Ruskin, Thomas Carlyle. So this period is very important in terms of English history, poem, novel. So when we read Victorian literature, certain ideas came into our mind. Historically, this period starts in 1837 to 1901. This is the period. कई बार प्रश्न पूछा गया है कि कब विक्टोरियन पीरियड स्टार्ट होता है. When did it start? And what is the time span of this period? So this period start in 1837 when Queen Victoria became the ruler of England. Accession of Queen Victoria. This is called accession of Queen Victoria. This is very important. Queen Victoria became the ruler of England. Second thing, first reform bill. Then there was another very important, this is called first reform bill. 1832, this is very important, that first reform bill. So these are two major incidents that you should keep in mind while making the period, while when you in fact periodize this period. These are two basic sections. So you can, or broadly speaking, you can divide. This is Victorian period, early Victorian, middle Victorian and late Victorian. This is very important. तो ध्यान रखिएगा, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है विक्टोरियन लिटरेचर पे. एलटी मेंस में भी इससे क्वेश्चन उठ सकते हैं. और वो क्वेश्चन ये है कि जैसे मैंने कहा था इसके पहले वाले मेरे लेक्चर में आपने देखा होगा कि आई टुक मोस्ट ऑफ द क्लासेस ऑन फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स. आपका मैंने रेनेसांस स्टार्ट किया था. Then I took 18th century, neoclassical, then I spent two lectures on romantic period, and now I am teaching you what we call, this period is called Victorian period. This is called Victorian period. So Victorian word is very important. इस प्रकार इस समय की जो लिटरेचर लिखे गए हैं, they had certain characteristics. उसको समझिएगा. Number one, that these literature, basically the literatures written during this time, they were highly didactic. एक चीज समझिएगा, एक didactic शब्द आया था. एक शिक्षा देते थे, एक प्रकार के पढ़ाते थे. They were didactic. They were preacher. There was a symbiotic relationship. Between reader and author.
बिटवीन रीडर एंड आथर। एक लेखक और आथर के बीच में बड़ा अच्छा संबंध था। दैट यू आल्सो शुड मस्ट कीप इन माइंड कि उस समय के लिटरेचर में आथर और रीडर के बीच में बहुत अच्छा संबंध था। आथर बड़े प्रिय थे, समझ आ रहा है ना। जैसा मैंने कहा, खास तौर से जब आप देखेंगे कि विक्टोरियन पीरियड में कि जब राइटर लिखना चालू किए तो इन लोगों का एक रीडर से एक रिलेशनशिप होता है। आखिर किसके लिए लिखते हैं? रीडर के लिए। और जैसा मैंने कहा था कि द राइज ऑफ मिडिल क्लास दैट वाज द दैट वाज द मेन रीजन फॉर द राइज ऑफ नॉवेल। एंड देन यू हैव फोर व्हील्स ऑफ नॉवेल दैट आई टोल्ड यू अर्लियर, स्मॉलेट, स्टर्न, Henry Fielding and Richardson, right? So, and then the novel reached its zenith form. Number one. Second thing, एक चीज ध्यान रखिएगा, तो अब हम देखेंगे डायडेक्टिक लिटरेचर था, बिकॉज विक्टोरियन समय में इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज्यादा हो गया था। यू नो, इंग्लैंड बिकेम इकोनॉमिकल हब, इट बिकेम वेरी रिच कंट्री इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ये हुआ था। Then you had basically industrial power. Industry became very important. For the first times, industrial power became very crucial factor. उस समय इंडस्ट्रियल हब हो गया था इंग्लैंड। ऐसी स्थिति में क्या होता है, लोगों में परेशानी भी हुई, एंग्जाइटी, बिकॉज ऑफ मटेरियलिज्म, कुछ चीजें विक्टोरियन समय में बहुत आया। एक तो था एंग्जाइटी, लोगों में हताशा भी आ गया। दूसरा समय में आ गया जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था, वो था मटेरियलिज्म, भौतिकवादी समय आ गया। लोग पैसे के पीछे भागने लगे, जीवन का एक उद्देश्य हो गया अर्न मोर मनी, है ना। और उसका मेन कारण ये हो गया, तो इसको ध्यान रखिएगा। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है वह है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वह है एक किताब छपी थी इन 1859 एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उस किताब का नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इस किताब को लिखा था चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने किताब लिखा था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, और उन्होंने उसमें एक थियरी दिया था, द थियरी ऑफ इवोल्यूशन। द थियरी ऑफ इवोल्यूशन। और उसके बाद एक आए थे हार्वर्ड, जिन्होंने थियरी दिया था डिटर्मिनिज्म। डिटर्मिनिज्म। ऑगस्ट कॉम्टे एक उस समय के फिलोसफर थे, उन्होंने एक थियरी दिया था, ऑगस्ट कॉम्टे, उन्होंने एक थियरी दिया था, द थियरी इज कॉल्ड पॉजिटिविज्म। ये आ गया। तो इन लोगों ने क्या किया, साइंस आ गया। साइंस, देखिए अभी तक एक विश्वास था कि मैन इज बॉर्न आउट ऑफ द इमेजेस ऑफ गॉड, है ना। जेनेसिस आपने पढ़ा होगा, जेनेसिस जो बाइबल का है उसमें कहा गया कि मैन इज बॉर्न आउट ऑफ गॉड्स इमेजेस। कहा जो आदमी आया है वह भगवान के इमेज से आया है। यू नो, द क्रिएटर ऑफ मैन इज गॉड। ये जेनेसिस में है, जो कि बाइबल में था। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में चार्ल्स डार्विन ने कहा नहीं नहीं, दिस थियरी इज नॉट राइट। उसके अनुसार आदमी जो है बिकॉज ऑफ इवोल्यूशन, यह एक इवोल्यूशन प्रोसेस से आया है। साइंटिफिक रीजन दिया और साइंस आ गया। तो साइंस वर्सेस फेथ, पहली बार ये विक्टोरियन समय में आया कि किसको माना जाए, विज्ञान को माना जाए कि हम भगवान को माने। समझने का प्रयास, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेदर वी शुड बिलीव इन गॉड और वी शुड बिलीव इन साइंस। साइंस को माने कि हम भगवान को माने, राइट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बाइबल के बात को पहली बार चैलेंज किया गया।
the biblical theory for the first time was challenged. And this is very important, that the basic writer, the basic thinkers who basically the intellectual we can say was Charles Darwin, who in 1859 wrote a book called the the origin of species. उसमें उन्होंने थियरी दिया कि माइट इज राइट। उसने एक बात कहा था जो बहुत बड़ी बात थी, वो था माइट इज राइट, माइट इज राइट, मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। दैट इज द थियरी ऑफ पावर, द थियरी ऑफ पावर। आगे आप लोग इसी थियरी को लेकर के अभी आप पढ़ेंगे पोस्ट मॉडर्निज्म, आपके मिशेल फूको जैसे थिंकर आते हैं, ये सब बात करते हैं पावर एंड नॉलेज, पावर एंड नॉलेज जैसी बात होती है, राइट। दोज हु विल स्टडी पोस्ट मॉडर्निज्म और जो लोग यूसी नेट की तैयारी कर रहे होंगे, दे विल रीड दैट उसी समय एक आया था, मिशेल फूको ने कहा पावर इज नॉलेज। तो पहली बार जो पावर जैसे शब्द का प्रयोग इसकी बात हुई। तो चार्ल्स डार्विन ने कहा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो बड़ी मछली छोटे मछली को तालाब में खा जाती है, इट मीन्स दैट देयर इज पावर बिहाइंड एवरीवेयर। इंसान की इंसानियत खत्म हो गई, ह्यूमैनिटी जैसी चीज नहीं रह गया। दैट देयर वाज टर्बुलेंट, देयर वाज एंजाइटी, देयर वाज disturbance, problem, social forces, rapid growth, industrialization. Rapid growth, industrialization. And the reason for all these factors was the rise of industrial, highly economic class. The London I should not say, but London became the city of very highly economical hub. That is second point. Third, the origin of species. Then Herbert Spencer, his theory was theory of evolution. Then you have Charles Darwin, who wrote Charles Darwin. Then you have Auguste Comte, who wrote who gave the theory of positivism. According to this theory, that if anything is, we should believe on certain thing which can be proved scientifically. So that is very important, that there is a faith that must be assessed by science. जो विज्ञान है, that is the deciding factor for morality, for ethics, for value. समाज के किसी भी चीज को, इंसान के इंसानियत को चलाने के लिए हमारे अंदर मोरालिटी होना चाहिए, एथिक्स होना चाहिए, वैल्यू होना चाहिए। इस बात की पहली बार चर्चा हुई। तो जब लोगों को लगा कि अरे क्या हो गया है, व्हाट इज हैपनिंग, लोग उदास हो गए, पीपुल बिकेम वेरी डिसअपॉइंटेड, फेथ वाज कंप्लीटली लॉस्ट। लाइफ में विश्वास ही तो सब कुछ है ना, विश्वास जैसी चीज ही नहीं रह गई। लोग पीपुल बिकेम फेथलेस, दे हैव लॉस्ट एवरीथिंग। ऐसा लगा एज इफ देयर वाज नथिंग लेफ्ट, एवरीथिंग इज डेड, गॉड इज डेड, भगवान नहीं रह गए, राइट। द वर्ल्ड ऑफ विक्टोरियन सोसाइटी लाइक हैमलेट, अनवीडन गार्डन, अनवीडन गार्डन, राइट, देयर वाज नथिंग लेफ्ट। ऐसे समय में ये था, दैट वाज द सोशल पर्सपेक्टिव ऑफ विक्टोरियन एरा। और उस समय जितने राइटर लिखे, उसी एज को हम बोलते हैं विक्टोरियन एज। जब आप में क्वेश्चन आता है एलटी मेंस में, राइट एन एसे ऑन विक्टोरियन लिटरेचर, तो आपको सिंपली ये चीजें लिखना है, व्हाट इज माइट इज राइट, हाउ चार्ल्स डार्विन थियरी इमर्ज्ड, व्हाट इज बेसिकली पावर, हाउ पावर इज सेव्ड बाय नॉलेज, राइट। तो इन सारी चीजों को ध्यान देना है। बेसिकली इफ यू सी द डेट ऑफ दैट पीरियड,
that starts in 1837, the rise of when Queen Victoria became the Queen of England. Then in 1832 the first reform bill was, and in fact broadly speaking the Victorian period could be formulated into three periods: early Victorian till 1848, 1848 to 70, mid Victorian, then late Victorian 1870 to 1901. तो तीन चीज को ध्यान रखिएगा, अर्ली विक्टोरियन या पीरियडेशन को सब पीरियड में करेंगे तो वन इट इज कॉल्ड टिल 88, राइट, 1837 to 1848. Then you have mid Victorian, it is 1848 to 1870, and then you have last Victorian, if you see, then this is called 1870 to 1901. So that is roughly speaking, these were three basically period of Victorian literature, right? मिशेल फूको, तो बाद में इन सब थियरी आया था, जो बेसिकली जो आपकी थियरी थी दैट इज कॉल्ड माइट इज राइट. इसकी जो बात हुई, या चार्ल्स डार्विन ने जो थियरी लिखा ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इन सारे चीजों को आपको ध्यान देना है. चार्ल्स डार्विन हु हैज रिटन ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, उसने जो है फेथ को चैलेंज कर दिया. फॉर द फर्स्ट टाइम इन फैक्ट फेथ वाज चैलेंज एंड बाइबल वाज चैलेंज. बाइबल मीन्स गॉड वाज चैलेंज, द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड वाज चैलेंज. और इसी समय में दिस इज लाइक प्यूरिटन, यू नो दैट. सो विक्टोरियन, और क्या था विक्टोरियन, दे वर वेरी विगरस, दे वर वेरी स्ट्रिक्ट इन देयर रूल. विक्टोरियन सोसाइटी में रूल्स रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट थे. देयर वाज विक्टोरियन मोरालिटी, नो दैट आप पढ़ेंगे तो देयर वाज अ विक्टोरियन मोरालिटी, उसको भी आपको लिखना है. विक्टोरियन मोरालिटी, राइट, विक्टोरियन मोरालिटी. एंड दिस विक्टोरियन मोरालिटी को आप कह सकते हैं सेक्सुअल मोरालिटी, sexual morality, or you can say Victorian sexual code, ये भी आया था, राइट. तो बहुत स्ट्रिक्ट मोरालिटी हो गया था. अच्छा, तो दीज आर सर्टेन थियरी जिनको आपको देखना है. अब देखिए उसमें जो राइटर थे, उन राइटर को भी आपको याद रखना है. नोटेड पोएट, तो उसमें के पोएट थे, उसमें थे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, पहले हो गए, जो कि विक्टोरियन के रिप्रेजेंटेटिव पोएट कहे जाते हैं, जो कि आपके टीजीटी पीजीटी प्रिस्क्राइब्ड हैं. उसके बाद आते हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग. उसके बाद आते हैं मैथ्यू ऑर्नल्ड, ठीक है, मैथ्यू ऑर्नल्ड. टॉमस हार्डी. देन यू हैव क्रिस्टीनिया रोजदी. These are the major Victorian poet, right? तो जब विक्टोरियन लिटरेचर आप पढ़ेंगे, you just read their writings, that how Charles, what they have written. तो पहले आप पोएम को एनालाइज करिएगा. इन पोएम यू फाइंड लाइक अल्फ्रेड टेनिसन का जो प्रिस्क्राइब्ड पोएम है, दिस इज कॉल्ड ब्रेक. His major poem is called break. ये बहुत फेमस पोएम है जो कि आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब है. break, right? Thy stole, break. So the poet is very not happy because of the death of his friend Arthur Hallam, but also he is talking about the in fact the losing of faith. कैसे उस समय faith भी lose हो गया, how faith was lost at that time, और पूरा एक तरह सोसाइटी ब्रेक हो गया था, टूट गया था, राइट. इसको जरूर पढ़ लीजिएगा. देन यू हैव लाइक यूलिसिस,
यूलिसिस ने कहता है टू स्ट्राइक, टू सीक एंड नेवर टू एंड, राइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, टू स्ट्राइक, टू सीक एंड नेवर टू एंड, ये बात कहा था, ठीक है, ये उसकी बहुत फेमस लाइन है। फिर आते हैं मैथ्यू आर्नल्ड। मैथ्यू आर्नल्ड का जो सबसे फेमस पोएम है दैट इज कॉल्ड डोवर बीच, डोवर बीच, right, where he says that the faith was once, now it is lost, we are like a darkening plane, we are moving, we are living in a state of in fact state of bleak vision, bleak vision, we don't have clear vision, right, that is how Matthew Arnold has written, we have bleak vision, we don't have clear vision, right, we are like darkening plane, जैसे फाइट करते हैं बिना जाने हुए, तो ऐसा सोसाइटी विक्टोरियन हो गया था। Then we have Thomas Hardy who has written to an unborn pauper child, और Thomas Hardy Darkling Thrust, तो वो जो है सेंचुरी की बात करते हैं, एक सेंचुरी बीत गया, दूसरी सेंचुरी आ रही है, उसकी बात करते हैं। बट if you analyze Victorian literature, just analyze Matthew Arnold and then just analyze the poem of Alfred Tennyson, you find that how their poems that are prescribed in your course, how they are the poems of representative poems of Victorian। ये पूछ सकता है break 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 or Ulysses or Matthew Arnold's poem like Dover Beach, where you find that how poet is talking about the faith which was lost, the poet is talking about the restoration of the faith, ठीक है, इस तरह की बात होती है। उसी बीच में आते हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग। देन रॉबर्ट ब्राउनिंग की जो सबसे बड़ी बात है दैट जहां तक आप देखेंगे where these two poets like Matthew Arnold and Alfred Tennyson, ये दो पोएट जहां पे ये दो पोएट ये पेसिमिस्टिक हैं, दे आर पेसिमिस्टिक, उसी जगह आपकी जो रॉबर्ट ब्राउनिंग है, रॉबर्ट ब्राउनिंग इज एन ऑप्टिमिस्टिक, ये उदासी की बात करते हैं, उदास है, होपलेस है, होपलेस है, इनका होपलेस खत्म हो गया, होप खत्म हो गया है। तो अब जब रॉबर्ट ब्राउनिंग आते हैं, नहीं सॉरी, ऑप्टिमिस्टिक मानो कि इनके अंदर, सॉरी दिस इज नॉट ऑप्टिमिस्टिक, मींस इनके अंदर एक प्रकार का ऑप्टिमिज्म है, एक आशावादी, आशावादी है ना। और रॉबर्ट ब्राउनिंग एक बात कहते हैं कि यदि हम कहें कि ग्लास इज हाफ फुल और ग्लास इज हाफ एम्प्टी, उनका दो मानना है, वो कहते हैं कि हम कह सकते हैं द ग्लास इज हाफ फुल, ग्लास आधा भरी हुई है, क्या इसको हम कह सकते हैं द ग्लास इज हाफ एम्प्टी, हाफ एम्प्टी। अब दोनों में क्या बात है, यही दोनों कहने का नजरिया है। यदि हम माने कि ग्लास भरी हुई है तो यह बात हमारा ऑप्टिमिस्टिक हो गया। हम कहेंगे ग्लास खाली है तो रॉबर्ट ब्राउनिंग कहते हैं कि ठीक है, जो बात बीत गई सो हो गया। यदि हम निगेटिविटी में से या पेसिमिस्टिक में से हम थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक हो जाएं तो ऑब्वियसली वी विल विन, वी विल बी सक्सेसफुल। तो दैट इज हाउ you see that this is Robert Browning's optimism, and he has developed a theory called dramatic monologue। dramatic monologue कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, what is his dramatic monologue? dramatic monologue एक सेपरेट टॉपिक में पढ़ाऊंगा। रॉबर्ट ब्राउनिंग was the creator of dramatic monologue। for example, if you read my last duchess, right, my last duchess, very famous poem, and then you have Robert Browning, and then you have उनके बहुत सारे एंड्रिया डेल सार्टो, द लास्ट राइड,
सर्टेन पोएम दैट ही हैज रिटन। तो इस प्रकार के, और लास्ट में आते हैं जीएम हॉपकिंस, लास्ट में आते हैं जीएम हॉपकिंस। जीएम हॉपकिंस को जब पढ़ेंगे, व्हेन यू रीड जीएम हॉपकिंस, उनको पढ़िएगा, ही हैज produced special types of rhythm that is called spring rhythm, and then he has given two theory in space and in scape, right? इन्हीं चीजों को पढ़िएगा जीएम हॉपकिंस। जीएम हॉपकिंस को, तो मेरा कहना यह था कि इन सारे पोएट को पढ़िएगा, पढ़ने के बाद जस्ट ट्राई टू एनालाइज देम, ट्राई टू अंडरस्टैंड देम, ट्राई टू राइट देम, उनको पढ़िए, उनको लिखने का प्रयास करिए, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट हाउ दे आर विक्टोरियन रिप्रेजेंटेटिव। जितना मैंने फिनोमिना बताया है, जरा उनको पढ़ने के बाद ट्राई टू एनालाइज दीज पोएट। In my next class, I will be taking Victorian prose, that is novel and fiction. Thank you. बंद कर दीजिए, कहीं भेजिए, कैसे यही रूम